Welcome back to the session. In our last class, we had done the principles of Taylor, and मैंने आपको बताया था that there are two basic theories that we go. It's not like that कि only two theories are there, but we go with two basic theories. One is Fayol's and second is आपका टेलर. और टेलर के प्रिंसिपल्स जो है उसके अंदर यू वुड बी हैविंग द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एज वेल एज द टेक्निक्स हाउ वी यूज दीज प्रिंसिपल्स. And today we are moving towards the next, that is principles of Fayol's. When we spoke about all the principles, जब मैं आपको बता रही थी what are principles, why they are used, तो आपको मैंने बताया था that Fayol's के जो principles हैं basically we use it at the administration level. It's not that कि हम उसे दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते हैं, बट उनके प्रिंसिपल्स हमारे जो मतलब कि फिट होते हैं, दैट इज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, मींस द ऑफिस, मेनली द ऑफिस जहां पर आपका काम ऑफिस से रिलेटेड है वहां पर. वेर इज जो टेलर के प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर वर्कशॉप लेवल जो हम बोलते हैं वहां पर था. In the development of classical school of management thought, Fayol's administrative theory provides an important. While Taylor succeeded revolutioning the working of factory shop floor in terms of devising the best method, fair day's work, differential piece rate system, functional foreman, Henry Fayol explained what amounts to a manager's work and what principles should be followed in doing this work. मतलब ये हमारा जो है, you can call it that it is a very basic difference between both of them. हम दोनों के बीच के अंदर अगर हम डिफरेंस बोलते हैं तो ये हमारा सबसे बेसिक डिफरेंस है. If workers efficiency mattered in the factory system, so is the managerial efficiency. Fayol's contribution must be interpreted in terms of the impact that his writings had and continue to have improvement in managerial efficiencies. जब हम इसको एंड करेंगे ना, वहां पर हम देखेंगे कि आज की डे पे, दैट इज इन 2023, द मॉडर्न एरा, what are we, how are we using these principles. डेफिनेटली बेटा ये आपके 1841 से 1925 के बीच का है. तो उस वक्त में और आज के में जमीन और आसमान का फर्क है. इनफैक्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 20 years, आई एम नॉट गोइंग वेरी बैक, लेकिन अगर हम 20 साल का भी हम बोलते हैं ना, तो जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है. हेनरी फेयोल वाज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट. ये आपको मतलब कि रिमेंबर करना है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. मींस आपसे क्वेश्चन में यू मे बी आस्क्ड हु वाज ही. जैसे उनका आपका था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये कौन थे? Whose theories concerning scientific organization of labor were widely influenced in the beginning of 20th century. He graduated from the Mining Academy of St. Antina in mining engineering, and at the age of 19 he started at mining company. Then उन्होंने उसी कंपनी को जो है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर लिया था. हिज थियोरीज डील विथ organization of production in the context of competitive enterprise that has to control its production cost. और ये वो थे जिन्होंने सबसे पहले दिया था द 4 functions of management, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, विच आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और इन्होंने अपना जो वर्जन दिया था, मतलब उनका वर्जन क्या था? प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. हमारे को
ये नहीं करना है। एक तो आपके क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वर द फर्स्ट 4 फंक्शंस दैट ही हैड आइडेंटिफाइड, और उनका वर्जन क्या था। तो वो उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं बोलते थे, वो बोले थे प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। और उन्होंने क्या कहा था, that all the activities could be divided into technical, commercial, financial, security, accounting and managerial. और उनका मानना था, this is actually the question which came in the CUET, in fact, physical, moral, moral, education, knowledge and experience, उनका ये मानना था। He believed number of management principles that might help to improve an organization's operation potential limitless. Based on his own experience, he developed 14 principles of management propounded by him, जो उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल। This can be there, not very important but can be there. It was published in English as General and Industrial Management in 1949 and is also widely considered as foundational work for classical management theory, और इसीलिए उनको हम father of general management कहते हैं। Taylor, while he was called as a father of scientific management, he is called as a father of general management. Now let us come to the principles which are more important. First, division of work. टेलर ने भी सेम कहा था और फेयोल्स ने भी। द ओनली थिंग इज कि फेयोल्स के जो इससे रिलेटेड आगे जो है वो अलग है। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज competent to require to perform each job. Thus, division of work leads to specialization. उनका मानना था कि अगर आप काम को छोटे हिस्से में भी करते हो और उसको करने वाला जो इंसान है ही इज स्पेशलाइज्ड, देन आपका काम बेटर होगा। क्योंकि अगर आप उस इंसान को डेफिनेटली एक आप मतलब कि इफ यू आर गिविंग एन आर्ट वर्क टू एन आर्टिस्ट एंड अ डांस वर्क टू अ डांसर, डेफिनेटली इट विल बी देयर। अगर आप उसको स्वाइप कर दोगे तो डेफिनेटली डांसर आर्ट वर्क नहीं कर सकता, आर्ट वर्क डांसर नहीं, डांसिंग नहीं कर सकता है, in unless and until they are competent in both. In business, work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks. अब ये जो लिखा हुआ ना बेटा, this comes as a what we call as आपके पेपर के अंदर as a case study आपके आ सकता है। मीन्स इसके अंदर लिखा हो सकता है, फेयोल के जगह पे नाम लिखा हो सकता है, the manager of Sigma Industries believed that work can be performed more efficiently. It is if it is divided into specialized tasks, each performed by a specialist or trained employee. So इसको identify the division or sorry identify the principles of management in this, तो आपको बताना फिर। So this comes in this. तो ये जो लिखा हुआ है इसको वो केस स्टडी बनाकर प्रेजेंट करते हैं। This results in efficient and effective output. Thus, in a company, we have separate departments like we have finance, marketing, production, और जो उनके head होते हैं, they are specialized. Collectively, they achieve production and sales targets of the company. Fayol applies this principle to all kinds of work, technical as well as managerial. मतलब ये हर जगह पे होता है। अगर आप हॉस्पिटल देखते हो, स्कूल देखो, अपने स्कूल में देखो, द बेस्ट थिंग इज योर टीचर्स इन नर्सरी या प्रेप, आई थिंक नर्सरी प्रेप या फर्स्ट तक यू हैव द मदर टीचिंग। मदर टीचिंग मीन्स ऑल द सब्जेक्ट्स आर टॉट बाय ओनली सिंगल टीचर, बट एज जैसे जैसे हम लोग जाते रहते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हमारे लिए द सब्जेक्ट्स आर देयर इन दी ऑफिस लेवल। आपके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, किसी किसी ऑफिस के अंदर मे बी दे आर हैविंग डिपार्टमेंट ना होगा, दे माइट बी, जैसे छोटी सी कंपनी है, दे आर नॉट हैविंग वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो द वर्क माइट बी डिवाइडेड, दे मे नॉट बी गिविंग दैट, दे माइट बी गिविंग ओनली द इंचार्ज, ऐसा देखते होंगे।
सेकेंड, अब काम को हमने डिवाइड किया, दिस विल कम अंडर ऑर्गेनाइजिंग। हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है उसका ये एक हिस्सा है टू डिवाइड द वर्क। एंड द सेकेंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो परटेन्स टू द सेम। जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है वो भी हमारा जो है ऑर्गेनाइजिंग को ही बताता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर द वर्क इज डिवाइडेड as per its uski matlab ki whatever its nature, and then the person who is going to do that work उसको लिया जाता है एंड अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को फिक्स किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फेयल, authority is a right to give orders and obtain obedience, and responsibility is a corollary of authority। मतलब आपके पास अथॉरिटी है तो आप जो हो दूसरों को कमांड देते हो, आप दूसरों को जो हो यू आर गिविंग देम द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू, एंड उसका सबऑर्डिनेशन हो जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। There are two kinds of authority, one is official and second is personal। that is, एक हो जाता है एज पर द कंपनीज और एक जो मैनेजर इंडिविजुअल है उसको जो देना है वो। Authority is both informal and formal in the organizational sector। in the corporate sector हमारे जो बातें होती हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो आगे अभी है हमारे, इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब हो जाता बच्चा जो हम मोर और लेस आपको रिटर्न में देते हैं। एनीथिंग विच इज गिवन इन रिटर्न is formal communication, whereas anything which is told as an oral one, that can be informal। but authority में वो रिटर्न भी दे सकता है, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय दिस पर्सन, एंड इनफॉर्मल भी दे सकता है, जनरल वर्बल इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है। there should be a balance between authority and responsibility। an organization should build safeguards against abuse of managerial power। मतलब आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फिक्स किया जाता, जिससे एक मैनेजर अब्यूज मतलब मिस यूज ना करे अपने पावर को। abuse of managerial power मतलब if you give a person over authority, so maybe the person becomes authoritative and the person might not look into the company's objective और अपना ही देखे। at the same time the manager should be given necessary authority to carry out the responsibility। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे कम दिया जाए, ऐसा नहीं है कि उसे ज्यादा दिया जाए। ज्यादा दोगे पावर का मिसयूज है, और कम दोगे तो हो सकता है कंपनी का नुकसान हो जाए। A sales manager has to negotiate a deal with a buyer। She finds if she can offer credit period of 60 days, she is likely to clinch the deal। clinch मतलब वो उस डील को पक्का कर सकती है, which is supposed to fetch the company net margin of say 50 crores। now the company gives the power to the manager to offer a credit period of only 40 days। भाई अगर उसको थोड़ा सा पावर अपने हिसाब से लेने का दिया जाए, it should not be over but it should be within the limit। it should be in that way कि there is no imbalance और कंपनी को नुकसान ना पहुंचे। बट ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एक वर्ड है ना बच्चा, दिस इज एक्चुअली अ डिबेट। आपका कब जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो कब अब्यूज हो जाता कोई नहीं जानता, कई बार होता है कंपनीज में। दिस शोज देयर इज imbalance in authority and responsibility। in this case the manager should be guaranteed authority of offering granted authority of credit period for 60 days। similarly in this example the manager should not be given the power to offer a credit of say 100 days। a manager should have the right to punish a subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate
फॉर प्रेजेंटिंग हिज और हर केस। ये पेपर में आया हुआ है, मतलब हर एक चीज इसमें से कोई ना कोई किसी ना किसी बार में आया होगा, एंड कहीं ना कहीं दिस कम्स एज अ केस स्टडी ओनली। नाउ दिस व्हाट इज दिस मीन कि एक मैनेजर जो है, नेचुरल है कि भाई आपके नीचे जो काम कर रहा है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको उसे कुछ ना कुछ तो पनिश करना पड़ेगा ना। लेकिन उससे पहले पनिशमेंट है मेरे पास, आई हैव द अथॉरिटी, सो आई कैन नॉट पनिश एनीथिंग, आई नीड टू लुक इनटू द रियल पर्सपेक्टिव। I will give you one example, even though it is from the teaching line, but this is actually an example for this. We had a teacher, हमारी एक teacher थी in the school. She was a very good teacher, and of course मतलब कि I can't say that she, उनका जो पढ़ाने का मेथड था वो बिल्कुल अलग था। She used to teach हिंदी, और जब वो हिंदी पढ़ाती थी ना, मैंने उनकी क्लासेस भी देखी हैं, बिकॉज आई वाज इंग्लिश टीचर तो हिंदी टीचर थी, वो पोएम्स को गाना गा गा के पढ़ाती थी। बट उनका क्या था कि शी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। आज से वो मतलब समझ लीजिए शी रिटायर्ड 8 या 9 years बैक, आप सोच सकते हो, एंड शी रिटायर्ड द एज ऑफ 60, सो यू कैन इमेजिन। तो अब होता क्या था कि उनको ना गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता था। शी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, और इसी वजह से हमारे स्कूल के अंदर, हमारे मतलब इन आवर स्कूल, द सीनियर टीचर्स एट दैट पीरियड वर गिवन कुछ, उनको मतलब प्रिविलेज मिलता था, नॉट ऐसा नहीं, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि वो टीचर्स तब से थी जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ था। अब उनको जब गुस्सा आ जाता था ना, तो देन शी वुड नॉट सी व्हाट शी इज डूइंग। सीनियर टीचर थी, मतलब क्लास 10th को पढ़ाती थी, और उस वक्त हमारा जो स्कूल था एट दैट पीरियड इट वाज ओनली टिल 10th, 11th तो उसी साल ऐड हुआ था। तो देयर वाज वन गर्ल, आई स्टिल रिमेम्बर दैट गर्ल्स नेम आल्सो, खुशबू करके, और उसने होमवर्क नहीं किया था। मैम को आया गुस्सा, शी डिड नॉट सी वेयर द चाइल्ड इज स्टैंडिंग, शी डिड नॉट सी, और वो बिल्कुल बीच में खड़ी थी स्कूल के, हमारे उसके अंदर बीच में। आप में से जो बच्चे गए हैं, दोज हु हैव गॉन टू एलपीएस, जो आपका ऊपर रिसेप्शन एरिया, वहां पर उस वक्त तो सब कुछ खुला हुआ था, एट दैट पीरियड एवरीथिंग वाज ओपन, एंड शी स्टार्टेड थ्रैशिंग दैट चाइल्ड लाइक एनीथिंग। हमारे स्कूल के अंदर मैं और एक और टीचर जो हमारी कॉमर्स की टीचर थी, हम दोनों जो कॉमर्स की टीचर थे, क्योंकि उसी साल 11th ऐड हुआ था ना, हम दोनों जो कॉमर्स के थे, हम ही बच्चों को आप कहकर बुलाते थे। ऑल अदर टीचर्स नॉर्मली यूज्ड टू कॉल तू। उन्होंने जो सुनाया उस बच्चे को, यू कांट इमेजिन, मतलब शी वेंट टू द फादर्स, मतलब उन्होंने जो कहते हैं ना मम्मी पापा तक, एंड थोड़ी देर बाद जब वो मतलब शांत हो गई, तो उस बच्ची की जो फ्रेंड थी, शी टोल्ड दैट हर फादर इज इन हॉस्पिटल, एंड दैट इज व्हाई द गर्ल हैड नॉट डन द होमवर्क। दिस इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस। उसके बाद हमारे स्कूल के अंदर एक रूल आया था दैट यू कैन नॉट टच अ चाइल्ड। आई नेवर, मतलब मेरी तो आदत ही नहीं थी, मेरे को तो बच्चे कहते थे मैम को डांट लगाने की जरूरत नहीं थी, मैम तो ऐसे ताने मारती हैं कि बस हो गया। और कई बार तो मुझे कहते थे मैम आप ना हमें मार दिया करो, बेटर है, बिकॉज आई वुड ऑलवेज सरकास्टिक कमेंट में पास करती थी। तो दिस इज वेयर वी आर इम्बैलेंस्ड। हमें पनिश करने का मतलब ये है कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आस्क। हो सकता है कि देयर इज सम बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस थे, हो सकता है कि द वर्क हैज नॉट बीन डन ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, हो सकता है कि देयर वाज सम पब्लिक हॉलिडे, देयर वाज समथिंग एल्स व्हिच कुड नॉट बी डन, देयर वाज अ पर्सनल प्रॉब्लम। Just because a manager has an authority does not mean he can use it. So this is balance. Next is discipline. Now, discipline means the obedience to organizational rules. Discipline हमारा जो है प्लानिंग के अंदर, रूल्स के अंदर आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग में भी आता है, और प्लानिंग में जो हम रूल्स रखते हैं,
certain rules that we need to follow. The rules can be related to your attendance, to your uniform, it can be related to other things. And according to Fayol, discipline requires good superiors at all levels, clear and fair agreements, and judicious application of penalties. For example, suppose management and labor union have entered into an agreement where workers have, और ये वाला जो लिखा हुआ ना, this has come at least 5 times in the paper. ऐसा कोई मतलब कि कहीं ना कहीं ये जरूर आया होगा. Suppose management and labor union have entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to revive the company out of loss. In return, the management has promised to increase wages when this mission is accomplished. Here, discipline would mean when the worker and management both honor their commitment without any prejudice towards any other. यानी कि एक strict follow up of whatever is said. Strict follow up of whatever is said. Please इसको confuse मत करना. Next is unity of command. मेरा बड़ा favorite है unity of command. Means one boss, one subordinate. According to Fayol, there should be only one boss for every individual employee, and this is completely the contrast to functional foremanship, जहां पर उनका टेलर का मानना था कि 8 सुपरवाइजर्स एक वर्कर को सुपरवाइज करेंगे. ये उसका बिल्कुल उल्टा है. If an employee gets order from 2 superiors at the same time, the principle of unity of command is violated. The principle of unity of command states each participant in a formal organization should receive orders from and be responsible to only one superior. इससे आपका जो काम है, that would be, there would be clarity. He gave a lot of importance to this principle. He felt if this principle is violated, authority is undermined, यानी कि जो अथॉरिटी है वो कम हो जाती है. डिसिप्लिन इज इन jeopardy, यानी कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है. ऑर्डर डिस्टर्ब एंड स्टेबिलिटी थ्रेटेड. दिस प्रिंसिपल I would write on this. This is which principle of Fayol resembles the military organization? Which principle of Fayol resembles the military organization? Dual subordination should be avoided. मतलब dual मतलब दो जने अगर किसी एक को बोल रहे हैं तो there would be definitely confusion, क्योंकि he would not be knowing कि वो किसको दे. सिमिलरली कई बार क्या होता है, दो डिपार्टमेंट्स आपके जो है कंफ्लिक्ट करती है. Suppose a salesperson is asked to clinch a deal with the buyer and is allowed to give 10% by the marketing. लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो उसे कहता है कि उसे 5% से ज्यादा नहीं करना. नाउ ही हैज टू लिसन टू टू बिकॉज ही इज अ सेल्समैन. किसकी सुनेगा वो? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना, यानी कि वन बॉस वन एम्प्लॉय. And unity of direction is all the units of organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts. Each group of activities having the same objective, like जैसे planning, जैसे production, जैसे finance, तो पूरे production department का एक ही मतलब कि objective है production. So they should have one head, one plan. उनका जो ऑब्जेक्टिव है, एक हेड जो है एक प्लान को एक बार में देख रहा है. इससे आपका जो काम है वो प्रॉपर हो सकता है. इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, और ये हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आता है. दिस कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स तय करते हैं,
तो उसके अंदर हम बेस्ड ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज हम जो है अपने डिपार्टमेंट्स को सेट करते हैं, ये उसके अंदर आता है. If a company is manufacturing motorcycles as well as cars, it should have two separate divisions. क्योंकि भाई मोटरसाइकिल के लिए जो आपके बेस है, जो उसके लिए आपका मतलब की रिक्वायरमेंट है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कार. Each division should have its own in charge plans and execution resources. On no account should the working of two divisions overlap. So this is how it is done. Unity of command, one boss and one subordinate. Whereas आपका मतलब एक जो सबॉर्डिनेट है वो एक ही बॉस से कमांड सुनता है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक हेड जो है वो एक ही तरीके के काम को देखता है, दो अलग तरीके के काम को वो नहीं देखता है. This is the difference. In unity of command, the one boss one, and it prevents dual subordination. यहाँ पे activities overlap नहीं करती है. In the unity of command, जो नीचे काम कर रहा उस पर, और जो डायरेक्शन है वो पूरी कंपनी के लिए है. Subordination of individual interest to general interest. Now what is the meaning? Subordination का मतलब होता है नीचे, एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट को अपने नीचे रखना है, एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है उसे ऊपर रखना है. दिस मीन्स यू मस्ट गिव प्रायोरिटी टू द कंपनीज गुड रादर देन योर ओन प्रॉफिट, योर ओन बेनिफिट. The interest of an organization should take priority over the interest of any one individual. Every worker has some individual interest for working in a company. The company has got its own objective. For example, the company would want to get maximum output from its employee at a competitive cost. Other hand, employee want maximum salary. In another situation, individual employee may demand some concession which is not admissible to any other employee, like working for less time. तो यहाँ पर in all these situations the interest of the company will supersede the interest. क्या benefit है company को, उसे देखते हुए we have to see. This is so because larger interest of workers stakeholders are more important than interest of any one person. किसी एक के लिए आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो. We need to look at the majority. For example, interest of various stakeholders, owners, shareholder, creditor, debtor, financer, tax authority, customer, society cannot be sacrificed for one group or one individual जो प्रेशर डालें. कई बार होता है आपके जो वर्कर्स हैं, जो यूनियन है, वो प्रेशर डालते हैं कंपनी पर, लेकिन कंपनी प्रेशर को नहीं करती है. द रीजन इज इट कैन नॉट गो विद वन इंडिविजुअल ग्रुप एंड पूरे के पूरे सबको जो है नुकसान पे लेकर आए. सिमिलरली a manager can ensure this by his exemplary behavior. He or she should not fall into temptation of misusing the powers for individual or family benefit at the cost of larger interest of the worker of company. This will raise her or his stature in the eyes of workers and at the same time ensure same behavior. होता है ना कि लोग जो है they go to the other side, गलत काम करते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए. Remuneration of employees, again this is a complete contrast to differential piece wage system of Taylor. क्योंकि उनका मानना था दो अलग वर्कर को उनके काम के अकॉर्डिंग दो, एंड Fayol believed the overall pay and compensation should be fair to both employees and organization. भाई अगर आप लोगों को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं दोगे तो दे वुड डेफिनेटली गो टू अनदर कंपनी. एट द सेम टाइम द कंपनीज पॉकेट शुड ऑल्सो बी सीन. आप ओवर दे दो, बाद में आपको जो है यू आर इन लॉस. The employees should be paid fair wages, which should give them at least a reasonable standard of living. At the same time, it should be within the paying capacity of the company.
इन अदर वर्ड्स remuneration should be just and equitable. यहाँ पर बार बार बच्चे जो हैं whenever this comes ना, जब भी आता तो वो equitable वर्ड को लेकर इक्विटी पे चले जाते हैं. विच प्रिंसिपल इज सेट, तो वो लिखते हैं इक्विटी. भाई जहां आपका पे आ गया, जहां सैलरी आ गई, जहां वेजेस आ गए, वहां आपका जो प्रिंसिपल है वो रिम्यूनरेशन रहेगा, नॉट इक्विटी. इक्विटी इज ट्रीटमेंट, नॉट सैलरी. This will ensure congenial atmosphere and good relations between the workers and management. And कंपनी का जो काम है वो हमेशा स्मूथ रहेगा. इक्विटी अभी आपके बाद में आएगा. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि द डिस्पर्सिंग ऑफ अथॉरिटी, जिसमें आपको डिसीजन लेने का पावर है, या तो कंपनी जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, एंड जो बाकी लोग नीचे काम करते हैं दे हैव टू ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड. लेकिन हर एक लेवल पर थोड़ा थोड़ा अपना जो अथॉरिटी है अगर हम दे देते हैं सो दैट द वर्क इज डन स्मूथली, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. एनी कंपनी विल बी हैविंग बोथ ऑफ देम एट वन टाइम. और कुछ कंपनीज है, स्पेसिफिकली द इंडियन पीएसयूज, जो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है. The authority is only with the top levels, others only have to follow, but most of the companies have centralized and decentralized both. The concentration of decision making authority is called centralization, whereas dispersal to more than one person is called decentralization. Decentralization आपका पूरा एक टॉपिक है, and this will be coming under directing. आपका जो चैप्टर डायरेक्टिंग है उसके अंडर आएगा. There is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers. Retention of final authority through centralization. Final authority हमेशा आपके top level पे रहेगा. The degree of centralization will depend upon the circumstances in which the company is working. In general, large organizations have more decentralization than small organizations. क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इतने लेवल नहीं होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वही ले लेते हैं. इन आवर कंट्री वंस अगेन कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है विच इज यूज्ड इन आवर कंट्री इन द पंचायत. आपका ये पेपर में आता है. Panchayats in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by the government for the welfare of the village. This is decentralization at the national level. उनको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसको उन पैसों को किस तरीके से यूज करना है, that has been the authority has been given to them. But हमारे यहाँ जो what you call as home ministry, defense, then आपका telecommunication, ये सारे के सारे जो हमारे मेजर हैं they are all only with the union government. That means they are centralized. जो decision central लेगी वो that is implemented to all the levels. Whereas at the state level they have some what you call as powers, and at the panchayat they have some powers to decide for themselves for their level. That is decentralization. Scalar chain. When this comes, you need to make this. ये आपको बनाना है, और इसके अंदर ये जो गैंग प्लैंक है ये भी लिखना है. Scalar chain is for the communication. When the authority जो है वो ट्रांसफर होता है from the highest to lowest level. Organization should have a chain of authority and communication that runs top to bottom and should be followed by managers. And let us consider there is one head A who has two lines of authority. एक है BCDEF और दूसरा है. Now if E has to communicate with O,
देन उसको अपने से ऊपर डी सी बी में जाना पड़ेगा, फिर ए को बताना पड़ेगा, फिर ए जो है अगेन इस लेवल पर, यानी कि यहां से इट विल फ्लो एंड देन इट विल फ्लो इन दिस मैनर, एंड देन जो जवाब है वो भी ऐसे ही जाएगा. मीन्स दे कैन नॉट टॉक टू दे कैन नॉट टॉक विथ ईच अदर. But if there is any emergency, then at the same level, अब देखो ये दोनों सेम लेवल है, 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 तो at the same level they can have the conversation, और इसको हम बोलते हैं gang plank. This is due to the principle of scalar chain which is followed. According to Fayol, this chain should not be violated in the normal course of formal communication. But yes, if there is any emergency, E can directly contact through gangplank. This is a shorter route and has been provided so that communication is not delayed. In practice, ये पेपर में लास्ट ईयर आया था, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ उसमें मतलब कि बड़े सारे इसके ऊपर वो थे, डिबेट था. In practice, you find that a worker cannot directly contact the CEO. If at all, then उसके जितने भी levels हैं, यानी कि foreman, superintendent, manager, director, सबको पता होना चाहिए. But अगर कोई emergency है, तो it can be possible that the worker can contact CEO directly. मतलब this can be in any level, सामने वाला भी और ऐसे भी. This was the one question. Order. Now this order is not the order given. Remember, people and material must be in suitable places in appropriate time. ये वाला जो है टेलर ने भी दिया था कि when there is two different, मतलब कि एक जो वर्कर है प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, तो everything should be there in order. Similarly, in an office also, everything and every person must have their own place. It is essential. If there is a fixed place for everything and it is present, there will be no hindrances. क्योंकि आपका काम बच जाएगा. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप स्कूल के अंदर गए और आपका मैथ्स का एग्जाम है, विच इज योर आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा, मतलब जो भी एग्जाम आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, और आप स्कूल के अंदर गए और आपने देखा कि कुछ भी आपके जो सारे मतलब कि जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, एवरीथिंग इज, और एग्जाम आपका बिल्कुल टाइम से स्टार्ट होगा, देन व्हाट विल हैपन, यू विल बी मतलब कि स्पेंडिंग टाइम. फिर आप टीचर को बोलोगे कि मैम हमें तो एक्स्ट्रा टाइम दो बिकॉज वी हैड बीन सेटिंग अप द टेबल्स. और अगर मैम कहती है आई एम नॉट गोइंग टू गिव, देन व्हाट विल हैपन, आपका पेपर छूट जाएगा. ऐसा ही ऑफिस में भी होता है. when you enter, उससे पहले you need that everything is there. आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप की जगह पर होना चाहिए. इक्विटी गुड. अब इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट. रेम्यूनरेशन का मतलब है इक्वल मनी. गुड sense and experience are needed to ensure fairness to all employees. Means आप जो हो सबके साथ एक जैसा बिहेव करते. The principle emphasizes kindliness and justice. This will ensure loyalty and devotion. Fayol does not rule out the use of force. कई बार आपको जबरदस्ती करना पड़ता है. Rather, he says lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of management. There should be no discrimination against anyone on account of sex, religion, language, caste, belief, nationality, जो कई बार होता है. और आजकल क्या है, if you work in an MNC, you will find people from all the what you call as a work culture आपका बड़ा ही अलग होता है. और मैनेजर्स, मान लो मैनेजर इंडिया का है, उसके लिए तो साउथ अफ्रीकन विल बी समथिंग एल्स. बट वी नीड टू अपने दिमाग से वो हटाकर हमें सिर्फ ये देखना है कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं. Equal opportunities are available for everyone in such companies to rise. Stability of
personnel. Stability of personnel मतलब आपका जो है this will come under आपका staffing. This comes under staffing. ये भी आपका जो है इक्विटी वाला जो है वो भी आपका डायरेक्शन में डायरेक्टिंग में आ जाता है, where it comes as the element of motivation, supervision, leadership वहां आ जाता है. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल मतलब कंपनी के जो पॉलिसीज है, इट शुड बी इन सच अ मैनर. अब एक इंसान है, दो इंसान है, ठीक है, दो इंसान ने एक साथ ज्वाइन किया, दोनों ने एमबीए किया है. हो सकता है कि जो एक है वो अच्छा आउटपुट दे रहा है विद इन अ शॉर्ट स्पैन, और जो दूसरा है उसको थोड़ा टाइम लग रहा है. अगर आप जो हो उसको टाइम नहीं दोगे, देयर शुड बी ए मिनिमम फिक्स टेन्योर. हमारे यहाँ पर उसके लिए हम लोग बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड. वी कॉल इट एज प्रोबेशन पीरियड. आप अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको पहले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल यू आर असिस्ट. देयर इज अ मिनिमम फिक्स टेन्योर. एटलीस्ट आपको पता, आपको 1 साल से पहले नहीं निकालते हैं, या इवन निकालना होता तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर. एम्प्लॉइज टर्नओवर मतलब नौकरी छोड़कर जाना should be minimized to maintain organizational efficiency. This is very important क्योंकि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान को लिया, उसको ट्रेन किया, उसको डेवलप किया, फिर उसके बाद वो नौकरी छोड़कर चला जाए, फिर it will only result in loss to the company. Personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure. ये सेम उन्होंने भी कहा था, टेलर ने भी आपका इसका नाम क्या है, इंडिविजुअल जो है उनके लिए वो सेम वाला जो है ये भी है. he also has given the same principle. he also has said that हर जो मतलब कि एम्प्लॉई है, he or she should be scientifically first of all tested, और उसके बाद अपॉइंटमेंट should be there. But once selected, they should be kept at their post for a minimum fixed tenure. They should have stability of tenure. They should be given reasonable time to show results. Any adhocism मतलब temporary, उससे क्या होगा भाई, अगर आपने डाल रखा कि भाई आपको निकाल देंगे अगर आप ये काम नहीं करोगे, तो वो इनसिक्योरिटी होगा, और उनको अगर अच्छी जॉब मिल रही तो वो छोड़ के चले जाएंगे. Recruitment, selection, and training cost will be high. So the stability in tenure of personnel is good for the business. भाई किसी भी कंपनी में दोबारा 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 अगर आप सोचते हो ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. Initiative, this also comes under direction. Means हर एक जो एम्प्लॉई है वो सजेशंस देते हैं, and if the suggestions are given, you should welcome them. आप नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं, आप उनको कम से कम एटलीस्ट एक्सेप्ट देम. आप उसे इंप्लीमेंट मत करो, एक्सेप्ट तो करो. Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement according to FAOL. Initiative means the first step with self motivation. It is thinking out and executing the plan. It is one of the traits of an intelligent person. Initiative should be encouraged. But it does not mean going against the established practice. A good company should have an employee suggestion system, initiative suggestions. इसके लिए आजकल क्या किया जा रहा है, most of the companies are taking this. या तो वो लोग क्या करते हैं, 3 months में, 6 months में दे कीप एन मतलब एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं जहां पर वो एम्प्लॉय से सजेशंस लेते हैं, एंड इफ दे फाइंड दैट सजेशन गुड तो दे इवन रिवॉर्ड द एम्प्लॉय. ये जो अभी आपका कोविड आया था तो कई कंपनीज में प्रॉब्लम्स आ रही थी, सो दे हैड केप्ट अ मीटिंग एंड देन दे इवन आस्क कि कैसे किया जाए किसी किसी कंपनी के अंदर जो है. फॉर एग्जांपल इन माय हस्बैंड्स कंपनी, उन्होंने मतलब दे ऑल गिव द सजेशन. मेरे को याद है बिकॉज दैट वाज द पीरियड व्हेन आई वाज विद हिम, ही वाज टेकिंग द मीटिंग. तो ही सजेस्टेड दैट एक डिपार्टमेंट के अंदर जो मतलब हर डिपार्टमेंट में से एक इंसान को हम अलाउ कर देते हैं.
दिस विल एंश्योर द मिनिमम, आपका जो आपकी सेफ्टी मेजर्स है वो मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम इंटरैक्शन रहेगा, और हर डिपार्टमेंट का एक इंसान होगा इन मतलब की टर्न. And that suggestion was implemented in the entire company and he was even rewarded for that. So this is how initiative works out. और अगर हम इनिशिएटिव को देते हैं, कई कंपनीज में क्या होता है, दे हैव द सजेशन बॉक्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द सजेशन बॉक्स इज नेवर ओपन, बट इट शुड बी ओपन. और ये आपका जो है वन ऑफ द क्वेश्चन, अगेन इट कैन कम इन 1 mark, इट डजंट कम इन वेरी लॉन्ग, बट आपका स्केलर चेंज बहुत लंबे में आता है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वगैरह आते हैं. एस्पिरिट टेक कॉप्स, जो टेलर का प्रिंसिपल था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये वही है. मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज. Management should promote teamwork, especially in large organization, because otherwise objection would not be. पहले क्या होता था, सबको इंडिविजुअल काम दिया, अब now everyone is now bound in a team. A manager should replace I with we in all his conversations with workers. इससे क्या होता है, जब कोई भी मैनेजर वी बोलता है ना, तो जो काम करने वाले ना, उनके अंदर ना एक मोटिवेशन होती है. अगर ये बोलते हैं ना तुमसे गलती हुई, या फिर अगर हम ये बोलते हैं भाई हमसे ये गलती हुई, तो दैट इज समवेयर और द अदर अ मोटिवेशन. This will give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among the team members and also minimize the need for using penalties, क्योंकि सब लोग काम करेंगे, सब काम करेंगे. So you from the foregoing discussion हम ये देख सकते हैं कि this is basically for the managerial problems and have cast a profound impact on management thinking today. मतलब आज की डे पे बहुत सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं. Now let us see the sorry box, the difference between बहुत कम है, आया हुआ नहीं है, बेसिकली बहुत कम आया हुआ है. फेयल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, एंड ये शॉप फ्लोर लेवल. यूनिटी ऑफ कमांड स्टॉन्च प्रोपोनेंट, मतलब ही वाज द वन जिसने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए. वेरएस टेलर ने बिल्कुल उल्टा बोला था, एक वर्कर को 8 लोगों से मिलना चाहिए. फेयल्स के प्रिंसिपल्स हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, टेलर के नहीं. पर्सनल एक्सपीरियंस से फेयल ने फॉर्म किया था, टेलर ने ऑब्जर्वेशन से किया था. फोकस ऑन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शॉप फ्लोर. Personality, practicing, and scientist nothing. He is called as general theory and he is called as scientific management. Now let us come to this portion जो हमने अभी तक किया है, मतलब की प्रिंसिपल्स आज की डेट पर, हाउ इट हैज बीन परसीव्ड. आज पहले क्या था, स्पेशलाइजेशन इन वर्कर्स जॉब डिजाइन, मतलब उनके काम को. अभी क्या है, जनरलाइजेशन इन वर्कर्स जॉब डिजाइन. Managers are empowered, but now even the employees are also empowered. Discipline, उस वक्त में there was a formal control, अभी क्या है, informal है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती. Most of the time, all the people are working 18 hours a day. आप बोलो या ना बोलो वो काम करते हैं, उनके पास इतना टारगेट है, अपने आप ही डिसिप्लिन हो चुके हैं. यूनिटी ऑफ कमांड, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस, यहाँ पर टू मल्टीपल बॉस. This is very common now. Functions have only one plan and one boss. Functions have multiple plans and multiple bosses. मतलब there is a change in this. Subordination में पहले employees आपकी committed थे, organization is now committed to employees. Remuneration उस वक्त में there was reasonable, आजकल target based है, करो और ले जाओ पैसा. Centralized, trickle down, यहाँ पे टास्क रिलेटेड एडॉक डिसीजन मेकिंग. मतलब एडॉक का मतलब है टेम्पररी. हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में दिया हो लेकिन दूसरे में आपको ना दे. वहां पर क्या था, देयर वाज अ सिस्टम कि कोई भी होगा
you can take the decision. Scalar chain पहले आपका ऊपर से नीचे एक प्रॉपर फॉर्मलाइज था, आजकल एक प्लैटर है. ऑर्डर, इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो अभी भी है. इक्विटी, कमिटमेंट ऑब्टेन्ड थ्रू काइंडनेस, इक्वल ट्रीटमेंट प्यार से, यहां पे थ्रू सेंस ऑफ ओनरशिप. मतलब आप लोगों के अंदर एक बिलोंगिंगनेस की एक भावना क्रिएट कर देते. इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब आज ये है. स्टेबिलिटी, पहले ट्रेनिंग की जाती थी, अभी भी की जाती है, अभी तो और ज्यादा की जाती है. इनिशिएटिव, मैनेजर्स कंसीव एंड इम्प्लीमेंट, अब तो वर्कर्स ऑल्सो डू इट. एस्पिरिट डे कॉप्स इज ऑलवेज देयर, वहां पर इट वॉज 100% होना जरूरी था. आज इट इज ओनली डिजायरेबल. मीन्स देयर इज, व्हाट डज इट मीन इज, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट स्टिल what does it mean is, it means there are definitely changes over the period of time. उन दिनों में और अब में जमीन आसमान का फर्क है. ये 19 मतलब कि आप सोचो 1800s और 1900s की बात है, और हम 2023 में रह रहे हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस कि कैसे हम इस चीज को करें. और हो सकता है कि आज से 20 years डाउन द लेन, जब आप लोग मतलब कि व्हेन यू माइट बी इन द सीनियर लेवल्स, तब भी ये चेंजेस आ सकती है. एंड दीज आर इम्पेरेटिव. आप इनको कुछ नहीं कर सकते, ये होते रहेंगे चेंजेस. बट देन ऑल्सो द बेसिक जो प्रिंसिपल है, यानी कि आपके जो भी हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, राइट फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration of personnel, centralization, scalar chain, order, equity, stability of personnel, initiative and spirit day corps. ये 14 के 14 जो है, ये इनमें हम चेंजेस लाएंगे, मॉडिफिकेशंस लाएंगे. हो सकता है कंटेम्पररी मतलब कि इसमें और फ्यूचर में हम इनको जब इंप्लीमेंट करते हैं तो देयर माइट बी सर्टेन डिफरेंसेस, बट रहेंगे ये यही. दीज आर वेरी एसेंशियल बिकॉज ऑन दिस दीज बेसिस ओनली जो हमारे आगे फंक्शंस हैं, जो हमारे आगे के चैप्टर्स हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, दे आर बेस्ड. कोई तो प्रिंसिपल होगा ना. आप स्टाफ रख रहे हो, आप किसी को नौकरी पे रखोगे तो सर्टेन प्रिंसिपल्स विल बी देयर. तो कौन सा प्रिंसिपल है, आप क्या यूज कर रहे हो, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इन अनदर वर्ड, principles of management are general guidelines. They are broad guidelines. ये guidelines है जो broad है, और इनको हम यूज करते हैं सिचुएशन में मॉडिफाई करके. जितना हमें चाहिए उतना हम यूज करते हैं. दे आर परवेसिव because they have to be implemented in all the organization and of course in all kinds of organization. इसीलिए प्रिंसिपल्स को हम लोग पढ़ते हैं. सो विद दिस द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज ओवर, even along with NCERT.